ادبی دنیا کے اس کام کو جاری رکھنے کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ ہماری مدد نیچے دی ہوئی اکاؤنٹ ڈیٹیلز کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔ راجندر سنگھ بیدی کی کہانی پون شاپ۔ بیگم بازار کی منحوس دکان میں ایک دفعہ پھر بیل دارو سوتی کے بھاری بھاری پردے لٹکنے لگے۔ موجود دافع چمبل و داد اور جاپانی کھلونوں کی دکان اوساکا فیئر جاپان سے متعلق کے ملازم استحجاب سے تھارو لال فوٹوگرافر کو اوک پلائی کا ڈارک روم بناتے دیکھ کر اس کے تاریک مستقبل پر آنسو بہانے لگے۔ 1 ماہ سے زیادہ چوٹ نہ سہے گا بیچارہ۔ دکان کیا ہوگی، بازار سے کچھ ہٹ کر ہے نا، نظر اسے سامنے نہیں پاتی، اور بس 1 ماہ 2 اور 4 تھارو لال وہیں تھا۔ موجود دافع چمبل و داد اور اوساکا فیئر کے ملازموں نے حیرت سے انگلیاں منہ میں ڈال لی، جبکہ 11 اگست کی صبح کو انہوں نے ایک جہازی سائز کا سائن بورڈ اس منحوس دکان پر آویزاں ہوتے ہوئے دیکھا۔ 12 بائی 6 فٹ سائز کے سائن بورڈ پر دیو صورت حروف خالص صنعتی انداز سے ناچتے ہوئے انٹرنیشنل فوٹو اسٹوڈیو کی شکل اختیار کر رہے تھے۔ اوساکا فیئر کے منتظم سمیم خانزادہ نے سلیولائٹ کی ایک بڑی سی گڑیا کے اندرونی فیتے کو اس کے اندرونی قلابوں سے احتیاط کے ساتھ باندھ دیا تاکہ گاہک کو شکایت کا موقع نہ ملے، اور پھر تھارو کی دکان پر آویزاں سائن بورڈ کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ انٹرنیشنل فوٹو اسٹوڈیو۔ تھارو کا کام بیگم بازار، اس کے نواح کے 3 محلوں، سامنے کے نشیبی چوک یا چھاؤنی کے ہائی اسکول تک محدود ہوگا، مگر وہ اپنی دکان کو ایک بین الاقوامی کاروبار سے کم نہیں دیکھنا چاہتا۔ کیا عجب جو اسے کسی دن پیٹروگراڈ، ٹمبکٹو یا ہونولولو سے فوٹو کا مال مہیا کرنے کے آرڈر ملنے لگے۔ بہرحال بین الاقوامی نام رکھنے میں حرج بھی تو کوئی نہیں، اس نام سے دکانداری کی فطری رجائیت ٹپکتی ہے، مگر افسوس سودے کی بدعت ترقی پسند ہندوستانی دکاندار کو بیگم بازار کے نواحی 3 محلوں، سامنے کے نشیبی چوک اور چھاؤنی کے ہائی اسکول سے دور کیا جانے دے گی۔ وہ ہر جائز و ناجائز طریقے سے گاہک کو پھنسانے کی کوشش میں قصب کمال کی تو دھجیاں اڑا دیتا ہے، گویا اپنے پاؤں میں آپ بیڑیاں ڈالتا ہے، اور یوں زیادہ آمدنی کی توقع میں طبعی آمدنی بھی معدوم۔ تھارو کی دکان پر اس جہازی قد کے سائن بورڈ کے نیچے ایک اور ٹین کی پلیٹ پر جدید اینک ساز بھی لکھا تھا۔ ترقی پسند مگر بھولے تھارو نے جدید اینک سازی محض سودے کی بدعت یا نقل میں شروع کی تھی، کیونکہ اس کا پڑوسی دکاندار جرابوں کے کارخانے کے ساتھ ٹیٹا گھر کاغذ بھی فروخت کرتا تھا۔ 11 اگست کی شام کو اوساکا فیئر کا منتظم سمیم خانزادہ اور تھارو کچھ اداس خاطر ہو کر ملے۔ دونوں کی آمدنی کا بیشتر حصہ تعطیلات گرما یا سرکاری دفاتر کے شملے کی طرف کوچ کی نظر ہو چکا تھا۔ ان دنوں میں اسٹوڈیو کے ساتھ پون شاپ پر بہت رونق رہتی تھی۔ پون شاپ کے پہیے دار تختوں میں کھڑیاں مٹی سے صاف کیے ہوئے شیشے بہت ہی خوبصورت دکھائی دیتے تھے۔ ایک ہلکی اور سبز جھلک رکھنے والے شیشے کے پیچھے ایک بک کے ساتھ ایک نفیس طلائی سیکنڈز گھڑی لٹک رہی تھی۔ اس کے نیچے قانون وقفہ کی کتابیں بے ترتیبی سے پڑی تھیں۔ شاید کوئی قانون کا بے قانون اور فضول خرچ طالب علم اتنی قیمتی کتابیں کوڑیوں کے مول گروی رکھ کر پیسے لے گیا تھا۔ کتابوں کے پیچھے ایک پرانی سنگر مشین پڑی تھی۔ اسے گروی رکھنے والے کو اتنی ضرورت یا اتنی جلدی تھی کہ اس نے مشین پر سے دھاگے کی گولی بھی نہ اٹھائی تھی۔ پون شاپ کے ایک کونے میں کانسی اور پیتل کے فلسطینی پیالوں کی شکل کے گلدستے اور لمبی لمبی ٹانگوں والے کلنگ پڑے تھے۔ فرنیچر کی 2 قطاروں میں اخروٹ کی لکڑی میں کشمیری تراش کا ایک بڑا سا گنیش بھی پڑا تھا، اور دیوار کے ساتھ پون شاپ کا مالک ایک آہنی صندوقچی پر اپنی کوہنیاں رکھے ہوئے اپنے کسی گاہک سے باتیں کر رہا تھا۔ 2 بلاوردی سپاہی پون شاپ کے مالک سے اجازت پا کر برآمدے میں پڑے ہوئے سائیکلوں کے نمبر دیکھ رہے تھے۔ A11785 نہیں، A222312 یہ بھی نہیں، H97401 یہ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ چلو۔ ایک عیسائی لڑکی 2 دفعہ بیگم بازار میں پون شاپ سے نشیبی چوک اور نشیبی چوک سے پون شاپ کی طرف واپس آئی۔ وہ بار بار غور سے پون شاپ کے اندر دیکھتی، اس وقت اس کے دبے ہوئے شانے پھڑکنے لگتے۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ پون شاپ کے اندر بیٹھے ہوئے 2-1 آدمی چلے جائیں اور سپاہی اپنا کام کر کے رخصت ہوں تاکہ وہ تخلیے میں آزادانہ اپنا کاروبار کر سکے، یا شاید وہ اپنا مال گروی رکھتے ہوئے جھجکتی تھی،
अगरचे उसके पास गिरवी रखने के लिए कोई चीज दिखाई न देती थी। उसके कदरे उम्दगी से तराशे हुए कसमई लब फड़कते दिखाई देते थे और उसकी बेख्वाब और भारी आंखें बेकरारी से पपोटों में हरकत कर रही थीं। पसीने से सफेद मलमल का फ्रॉक उसकी पुष्ट पर चिमट गया था और पुष्ट की जानिब से उसकी अंगियां के तनाव के रेशमी फीते शानों पर गोल चक्कर काटते हुए साफ दिखाई दे रहे थे। आज बहुत गर्मी है, तोबा, शाम को जरूर बारिश होगी, ओसाका फेयर के मुंतजिम ने कानों को छूते हुए कहा। थारू ने यह बात न सुनी और बहुत इन्हिमाक से पॉन शॉप के अंदर देखता रहा। फिर यकायक कांपते हुए उठा और बोला, इससे तो मैं भूखा मर जाना पसंद करता हूँ। समीम ने गौर से पॉन शॉप के अंदर देखा और बोला, जरूरत मजबूर करती है मेरे भाई, वगरना कोई खुशी से थोड़ा ही। लड़की पॉन शॉप से बाहर आई। उसके बशरे से साफ आया था कि गिरवी माल पर उसके अंदाजे और जरूरत से उसे बहुत ही कम रुपया मिला था, नहीं तो इत्मीनान और खुशी की तहरीर उसके चेहरे पर जरूर दिखाई देती। वो अपने बीमार खाविंद पर अपना सब कुछ लुटा चुकी थी। अब उसके पास सुनहरी बालों के सिवा गिरवी रखने के लिए रहा भी क्या था। काश इन हल्कादार लंबी लंबी सुनहरी जुल्फों की हिंदुस्तान में कुछ कीमत होती। लड़की ने अपना दायां हाथ ऊपर उठाकर एक उंगली को जड़ से मसलना शुरू किया। उंगली पर एक जर्द सा हल्का नजर आ रहा था। ना मालूम कितनी जरूरत से मजबूर होकर उसने अपनी अजीज तरीन चीज, अपनी रोमानवी हयात मुआशिका की आखिरी निशानी पॉन शॉप में गिरवी रख दी थी। उसने अपने रंडवे हाथ से अपनी सुनहरी जुल्फों को नफरत से पीछे हटा दिया, क्योंकि उनकी कोई कीमत न थी, और पॉन शॉप के पहिएदार तख्तों में खड़िया मिट्टी से साफ किए हुए खूबसूरत शीशों में उसने अपने हसीन चेहरे के धुंधले अक्स को देखा और रोने लगी, क्योंकि वो हुस्न फरोश न थी। लोहे की एक खुर्दबीन नुमा नाल में थारू करकस के चंद हल्के से मुहद्दिब शीशे डालकर निस्फ घंटे के करीब एक बूढ़े की आंखों का मुआयना करता रहा। बूढ़े के सामने कुछ दूर एक ताक के साथ उर्दू के हरूफ तहज्जी आवेजा थे। थारू बार बार उस नाल की दर्ज में किसी नए और हल्के से मुहद्दिब शीशे को रख देता। बूढ़ा कहता, अब मीम तुम्हारे कोट से भी बड़ी दिखाई देती है, अब जोए से शुआएं निकल रही हैं, अब ऐन धुंधली धुंधली और परछाईदार नजर आती है। अब सब हरूफ दिखाई तो ठीक देते हैं, मगर बहुत ही छोटे छोटे, तुम्हारे कोट के बटन से भी छोटे। वो बूढ़ा क्या जाने कि अगर किसी मुहद्दिब शीशे में तमाम हरूफ तहज्जी अपने कदो कामत के दिखाई देने भी लगे, तो भी वो थारू लाल जदीद ऐनक साज और फोटोग्राफर से एक दीदा जेब स्लीवलाइट का फ्रेम किया हुआ चश्मा लगवाकर हमेशा के लिए अंधा हो जाएगा। 1.5 घंटे की साइंटिफिक देखभाल के बाद थारू ने शीशे का नंबर एक कागज पर लिखा और ऐनक बूढ़े को दे दी। बूढ़ा उन अमीर ग्राहकों में से नहीं था जो थोड़े पैसों की अदायगी के लिए भी यकुम का वादा किया करते हैं। पैसे उसकी मुट्ठी में थे। थारू लाल के मांगने पर उसने चंद पसीने से शराबोर सिक्के काउंटर पर बिखेर दिए। उन सिक्कों के देखने से घिन आती थी। थारू ने एक हरीसाना अंदाज से सिक्के उठाकर अपनी जेब में डाल लिए और अपना हाथ पतलून से पोंछने लगा। थारू ने एक मगरूराना अंदाज से पॉन शॉप की तरफ देखा। एक अधेड़ उम्र का शरीफ आदमी जिसका मुंह कान तक तमतमा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता पॉन शॉप के सामने की 3 सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। नीचे उतरते हुए उसने पॉन शॉप के पहिएदार तख्तों में खड़िया मिट्टी से साफ किए हुए खूबसूरत शीशों में से अपने पुरशराफत चेहरे के धुंधले अक्स को देखा और गमजदा हो गया, क्योंकि वो बदमाश नहीं था। पॉन शॉप का मालिक 4 दिन में भी इतना सूद जमा नहीं कर सकता। थारू ने अपनी जेब में सिक्कों की खनकार पैदा करते हुए कहा। फिर थारू एक बेसूद बेहासिल गुरूर के जज्बे के साथ आसपास के दुकानदारों की आमदनी का अंदाजा लगाने लगा। इस ला हासिल जमा खर्च में बेगम बाजार के बिसातियों का कोई दखल न था। उनकी आमदनी लामहदूद थी और थारू के महदूद तखय्युल से बहुत ही परे। हाँ, मौजद दाफा चंबलो दाद के नुस्खे की कीमत ज्यादा से ज्यादा 2 आने होगी। गंधक, राल, सुहागा, फिटकड़ी का एक हिस्सा और नीला थूथा 1/8 हिस्सा और एक मख्फी चीज जो उस नुस्खे की कामयाबी की कलीद है और जिसने उस अत्तार को मौजद का खिताब दिया है, वो भी 1 आध पैसे में आ जाती होगी। इसमें वो कमाता क्या है? ओसाका फेयर के मुंतजिम को कमीशन बट्टे की बिना पर मिलता ही क्या होगा? हेयर कटिंग सैलून वाले फी हजामत 4 आने 5 आने कमा लेते होंगे। थारू ने एक दफा फिर चमकती हुई आंखों से पॉन शॉप की तरफ देखा। उसकी पतलून की जेब में पसीने से शराबोर सिक्के उसकी रानों को गीले गीले लगने लगे। उस वक्त ओसाका फेयर का मुंतजिम आया। हफ्ते भर उसकी दुकान पर सिवाय परचून के चंद ग्राहकों के और कोई ना आया था।
दशहरा, शब बारात या दिवाली में अभी 2.5-3 माह बाकी थे। क्या ओसाका का बड़ा ऑफिस अक्टूबर तक इंतजार करेगा? समीम खानजादे का चेहरा कदरे सियाह हो गया था और उसके गुज़िश्ता 1-1.5 हफ्ते में इतने मुअम्मर दिखाई देने की कोई खास वजह थी। समीम ने अपने आप को आराम कुर्सी पर गिरा दिया। थारू बोला, ये पॉन शॉप का काम हमारे कामों से बैक वक्त अच्छा भी है और बुरा भी। अच्छा कैसे? आमदनी, हम कर्कस के चश्मे और फ्रेम खरीदते हैं, अक्स लेने के लिए मनफी प्लेटें और मस्बत कागज लाते हैं। कभी कभी हमारा नुकसान भी हो जाता है। पॉन शॉप में पल्ले से क्या खर्च करना पड़ता है? अगर कोई मियाद के बाद ली हुई रकम से तिगुनी रकम की चीज छुड़ाने ना आ सके तो सब कुछ अपना और एक बड़ा सा डकार। बुरा कैसे? बुरा इसमें धोखे का खतरा है। ये लोग दूसरे का माल अपने पास गिरवी रखते हुए और बगैर महसूस किए हुए अपना जमीर अपने गाहक के सामने गिरवी रख देते हैं, और यहाँ से कभी कभी कोई हसीन लड़की अपनी रोमानवी हयात मुआशिका की अजीज तरीन और आखिरी निशानी देकर हसरत के आलम में अपने रंडवे हाथ को मसलती हुई चली जाती है। अगर हमारे यहाँ सुनहरी जुल्फों की कोई कीमत हो तो ये हरीस आदमी उनको भी गिरवी रख लिया करें। अगर किसी शरीफ अधेड़ उम्र के आदमी की शराफत बिकाऊ हो तो ये लोग उसे भी गिरवी रखने से गुरेज ना करें। और थारू मुस्कुराकर गुरूर से सिक्के अपनी जेब में उछालने लगा। 2 घंटे से थारू ने चंद मनफी प्लेटें बर्फीले पानी में डाल रखी थीं। अब वो उनसे मस्बत कागज पर अक्स उतारना चाहता था। उसने पानी में हाथ डालकर देखा। पानी गर्म हो चुका था और मनफी प्लेटों पर मसाला पिघलकर लावे की सूरत इख्तियार कर गया था। थारू के रोंगटे खड़े हो गए। वो कुछ ना बोला, वो कुछ बोल ही ना सका। ये उसे 6 रुपए का नुकसान था। एक ऐनक की बचत से 3 गुना ज्यादा नुकसान। थारू एक अंगड़ाई लेकर समीम के पास बैठ गया। उसे यूं महसूस हुआ जैसे एक लम्हे में उसकी सकत उसके जिस्म से खींच ली गई हो। थारू टकटकी बांधकर पॉन शॉप की तरफ देखने लगा। शीशे के पीछे तिलाई सेकंड्स कानून वक्फा की किताबों पर लटक रही थी। एक कोने में कांसी और पीतल के फिलिस्तीनी प्यालों की शक्ल के गुलदस्ते और लंबी लंबी टांगों वाले कुलंग पड़े थे। फर्नीचर की 2 कतारों में अखरोट की लकड़ी में कश्मीरी तराश का एक बड़ा सा गणेश भी दिखाई दे रहा था, और एक दीवार के साथ पॉन शॉप का मालिक एक आहनी सैफ पर अपनी कोहनियां रखे। ओक पिलाई के डार्क रूम में दम घुट जाने पर थारू ने एक गहरा सांस लिया और फिर मस्बत कागज पर नक्श को मुस्तकिल करने वाले मुरक्कब को हिलाता रहा। उस वक्त पसीना उसकी कमर से होकर घुटनों की पुष्ट पर कतरा ब कतरा टपक रहा था। शायद थारू ओक पिलाई के डार्क रूम में पिघल कर अपनी जान दे देता अगर समीम ओसाका फेयर को बंद करते हुए इधर ना आ निकलता। थारू ने समीम की आवाज पर बाहर आते हुए आहिस्ता आहिस्ता अपनी कमीज उतारी, उसमें से पसीना निचोड़ा और कमीज को पानी के एक टब में छोड़ दिया और हाँफते हुए बोला, आजकल ईमानदारी के काम में पड़ा ही क्या है। और बैनुल अक़वामी कारोबार के शायख थारू ने एक फटी हुई बनियान आहिस्ता आहिस्ता सर से नीचे उतार ली। पानी के टब में थारू की कमीज की जेब में से कागज का एक पुर्जा निकलकर पानी पर तैरने लगा। उस पर लिखा था 3 आने का मुरक्कब, 2 आने यूनियन का चंदा, 1 पैसे की गंडेरियां, कुल 5.25 आने। थारू बोला, ये मेरी तमाम दिन की आमदनी और खर्च है। तुम कमारा देख कर मजाक करते हो। बियाह मोहब्बत कितनी मीठी चीज है, मगर खाली मैदे में तो पानी किसी नेमत भी जाकर तड़पा देती है। ओसाका फेयर का मुंतजिम मबहूत बना थारू के गमजदा चेहरे के टेढ़े मेढ़े शिकनों की तरफ देखता रहा और बोला, तुम ठीक कहते हो भाई, ईमानदारी के काम में पड़ा ही क्या है। ओसाका से चिट्ठी आई है, अगर 6 माह के अंदर नक्शा कैफियत में आमदनी की मद भारी या कम अज कम खातिर ख्वाह दिखाई न दी तो ये दुकान दिल्ली के दफ्तर से मुलक कर दी जाएगी। चंद लम्हात के लिए दोनों खामोश रहे। फिर थारू बोला, पॉन शॉप का मालिक 10 से लेकर 12.5% तक फर्नीचर पर दिए हुए रुपयों में से काट लेता है। आमतौर पर नेशनल बैंक और पासे के सोना पर 1 पैसा फी रुपया सूद लेते हैं। मगर इधर देखो समीम, तस्वीर की तरफ मत देखो। तुम्हें वो लड़की याद है ना जिसने मजबूरी और हसरत के आलम में अपनी अजीज तरीन चीज पॉन शॉप के मालिक को दे दी थी। उसकी अंगुश्तरी की कीमत 80 रुपए थी। खानजादा उछल पड़ा। थारू बोला, पॉन शॉप के मालिक ने खुद मुझे बतलाया है, उसकी कीमत उसने 30 रुपये डाली, सिर्फ 30। मैं सच कहता हूँ 30 रुपए, और 1 आना फी रुपया सूद लगाया। मियाद 31 अगस्त तक है, यकुम भी नहीं। इसके बाद वो अंगूठी उसी लुटेरे और दरिंदे की होगी।
एक चीथड़े से किसी तस्वीर की पुष्ट को कबूतरों की बीट से साफ करते हुए थारू बोला, मेरी जेब में कच्ची कौड़ी भी नहीं, दुकान में न मनफी प्लेटें हैं न मस्बत कागज, 200 बत्ती की ताकत का एक बल्ब फ्यूज हो गया है, मैं काम कैसे कर सकता हूँ। खानजादे ने ओसाका से आई हुई चिट्ठी जेब से निकाली और शायद 10वीं बार उसे पढ़ने लगा। कुछ देर गौर फिक्र में गर्क रहने के बाद थारू ने तस्वीर और चीथड़े को मेज पर रख दिया और बोला, बेगम बाजार की मनहूस दुकान फिर अपनी दुख भरी कहानी को दोहराएगी, अनकरीब ही खाली हो जाएगी। इंटरनेशनल फोटो स्टूडियो का काम पेट्रोग्राड, टिम्बकटू या होनोलुलु तक वसी होना तो एक तरफ रहा, वो बेगम बाजार से नशेबी चौक तक भी पहुंचने से कासिर रहा। और क्या भाई, आजकल ईमानदारी के काम में रखा ही क्या है। समीम ने सर उठाकर देखा, सामने थारू खड़ा था। थारू जिसका जिस्म रूह दोनों इर्तिका पजीर हो चुके थे। पॉन शॉप का मालिक और थारू मकामी कॉटन मिल के हड़ताली मजदूरों का मुजाहरा देख रहे थे। यकायक पॉन शॉप के मालिक ने थारू को अंदर ले जाकर एक छोटा सा कागज सामने रख दिया। थारू का चेहरा कान तक तमतमा उठा, उसकी आंखों में खून के आंसू उतर आए। हकलाते हुए उसने कहा, 10%? 10% तो बहुत ज्यादा है। तुम्हें ये खास रियायत है, वरना 12 से कम नहीं। तुम कैमरे को फर्नीचर में क्यों गिनते हो? और वो जेवरात में भी तो शुमार नहीं हो सकता। थारू लाल ने फिर एक दफा कागज पर नजर डाली और अपनी शोला फिगन आंखों को ऊपर उठाते हुए कहा, 31 अगस्त को नहीं, तुम मुझे लूटना चाहते हो? यकुम की शाम तक। बाबू लोग यकुम को ही पैसे देते हैं। बात सिर्फ यह है, 31 अगस्त की रात को मैं शिमला जा रहा हूं, वरना यकुम हो जाती तो क्या परवाह थी। अमूमन इस मामले में ग्राहकों की रजामंदी हमें मतलूब होती है, मगर मकामी कॉटन मिल के हड़ताली मजदूरों के हुजूम को चीरते हुए एक शख्स बाहर निकला। उंगली से पेशानी पर से पसीना पोंछते हुए उसने पॉन टिकट निकाला, 42 रुपये पॉन शॉप के मालिक की मेज पर रख दिए और सिंगर मशीन छुड़ाकर इस तेजी से भागा कि धागे की गोली दुकान के अंदर गिरकर उसके पीछे पीछे घिसटती हुई दरवाजे की एक दर्ज में टूट गई। थारू ने कांपते हुए हाथों से कागज पर दस्तखत कर दिए। पॉन शॉप के मालिक ने एक डिबिया को खोलते और बंद करते हुए कहा, एक गवाही भी डलवा दो, रस्मिया तौर पर जरूरत होती है। ओसाका फेयर के मुंतजिम को ले आओ। थारू के हाथ ज्यादा कांपने लगे, वो भी समीम की तरह मुअम्मर नजर आने लगा। थारू खांसते हुए बोला, मगर मैं समीम के सामने रुपया लेना नहीं चाहता। पॉन शॉप का मालिक ड्रामाई अंदाज से हंसने लगा। हंसते हुए उसने सामने लटकते हुए झूमरों की तरफ इशारा किया और बोला, वो समीम की बीवी के हैं। अब थारू ने जाना कि क्यों समीम एक हफ्ते में ही मुअम्मर दिखाई देने लगा था। उसने चुपके से सनद पर भी दस्तखत कर दिए, पॉन टिकट हाथ में लिया और किसी दूसरे दुकानदार की गवाही डलवा दी। फिर वो पॉन शॉप के पहिएदार तख्तों में खड़िया मिट्टी से साफ किए हुए खूबसूरत शीशों में अपने मुअम्मर और दयानतदार चेहरे के धुंधले अक्स को देखते हुए पॉन शॉप की सीढ़ियों पर से उतरा। उसकी आंखें पुरनम हो गईं, क्योंकि वो ईमान फरोश और बदकिमाश नहीं था। 31 अगस्त तक थारू सूख कर कांटा हो गया। वो उसी रस्सी की मानिंद हो गया था जो जल जाने के बाद भी वैसी सूरत रखती है। उसे किसी तरफ से आमदनी की सूरत नजर न आती थी। उस पर सकरात की सी कैफियत तारी हो गई, जबकि आदमी मायूस होकर आसमान की तरफ सर उठा देता है। ईमानदार की खुदा मदद करता है। ईमान की कमाई में बरकत, ईमान, लानत। ओसाका फेयर का मुंतजिम थारू के पास आया। मायूसी के अंदाज से उसने अपने आप को एक कुर्सी पर गिरा दिया और बोला, पॉन शॉप में एक कैमरा दिखाई देता है। थारू लाल ने शर्मिंदा होकर सर उठाया और एक गहरी नजर से पॉन शॉप में देखते हुए बोला, हाँ दिखाई देता है, और झूमरों की एक जोड़ी भी। खानजादे ने एक सर्द आह भरते हुए कहा, कितनी में याद है? 31 अगस्त। और तुम्हारी? 31 अगस्त। कोई सबील? कोई नहीं। और तुम्हारी? और दोनों ने एक सर्द आह भरते हुए सर गिरा दिया।